Good morning, everyone. In today's physics class, we are going to revise chapter motion. Earlier, we have also revised, but I'm just recapitulating the things in today's class. Okay, as we have test on Sunday. So we are starting with the term rest. When do you say that the body is at rest? Rest means to object that is fixed at its position. It is not moving at all. Okay. So whenever the object remains at its position or the you say the object is not moving, then you can say the object जो है वो rest पे है. And when do we say that the object is in motion? When object changes its position, means वो move कर रहा है with respect to the surroundings. Then we say that the object is in motion. Now, the types of motion we will study rectilinear. Rectilinear motion means rectilinear motion means the object is moving in a straight line. जब ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर. ओके. एंड सर्कुलर मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ. जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वी से इट मोशन एज सर्कुलर मोशन. एंड देन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. मीन ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म होगी स्पीड, एक जैसी स्पीड के साथ वो चल रहा है, तभी उसी केस में ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इक्वल डिस्टेंस कवर कर पाएगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. द नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म में वो क्या करेगा? इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके. जैसे ट्रैफिक है, बिजी रोड है, तो उस केस में कभी कार जो आपकी स्लो हो जाती है, कभी वो फास्ट मूव करती है, तो अनइक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यू कैन से इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. Okay, the next is scalar quantities and the vector quantities. Scalar quantities ऐसी physical quantities होती हैं जिनका सिर्फ magnitude होता है. Magnitude means only value. They have only value. Okay. And what about vector quantities? Vector quantities magnitude plus direction. Those physical quantity जिनका magnitude भी होता है और उनकी हम direction को भी mention करते हैं. So those physical quantities are known as vector quantities. Now we will study about distance and displacement. So first, distance and displacement. What do you mean by distance? It is a length of path covered by an object. So this is the line. ये line है ये. ठीक है. ये total length इसकी कितनी है? Suppose it is 5 meter. Okay. So means distance कितना cover हुआ? 5 meter हुआ. तो डिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. जो भी क्वांटिटी स्केलर होगी वो कभी जीरो नहीं हो सकती. ओके. ना ये कभी नेगेटिव होती है. तो सेकंड पॉइंट यू आर राइटिंग स्केलर क्वांटिटी. अगर थर्ड पॉइंट भी पूछा है तो यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट फ्रॉम हियर कि स्केलर क्वांटिटी है तो इट कैन नेवर बी जीरो. ओके. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, और कैन नॉट बी zero, can never be zero. So this is all about your distance. And what do you mean by displacement? It is the difference between initial and final point, means the shortest distance. Okay. Like in the case of circular path, suppose आपने यहाँ से start किया है, ठीक है, और आप मूव करके उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं, तो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट इज सेम, तो उनके बीच का कोई डिस्टेंस रहा ही नहीं, तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. ओके. तो ये वेक्टर क्वांटिटी या डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो भी हो सकती है. ठीक है. ये टू डिफरेंसेस आई हैव शोन यू. थर्ड पॉइंट यू कैन मेक बाय योर ओन फ्रॉम दीज पॉइंट. सेकंड पॉइंट. ठीक. द नेक्स्ट इज स्पीड एंड वेलोसिटी. See the units are written here meter per second. Speed की unit is meter per second. Velocity की unit is meter per second. Now the speed का formula you know distance upon time, or you can define speed as distance covered by a body per unit time. And velocity को आप कैसे define करेंगे? Displacement upon time means displacement क्या है? Distance covered by a body per unit time in a given direction. This is your velocity. यहाँ स्पीड की जगह क्या आ गया? यहाँ सी दिस इज स्पीड, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर क्वांटिटी में इट इज वेलोसिटी. अगर यहाँ डिस्टेंस है तो इट इज स्केलर, तो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर क्वांटिटी में इट इज डिस्प्लेसमेंट हेयर.
ओके, तो व्हेन डिस्टेंस का प्लस डायरेक्शन आ जाए तो वो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यू कैन डिफाइन वेलोसिटी एज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी बाय यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। ओके, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन वो डिस्प्लेसमेंट ही बन गया आपका। ओके, and second point you can write speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Next is average speed. What do you mean by average speed? Average means total आपको करना है, total distance upon total time. Speed का average निकाल रहे हैं तो it is total distance upon total time. And if you talk about average velocity, what do you mean by average velocity? It can be obtained by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity. But these all definitions you have written in your registers. Okay, go through your notes and try to revise those things. Okay, so initial velocity is represented by u, final velocity is represented by v. So average velocity का formula बन गया u plus v divided by 2. मीन हम ऐसे निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, u and v these are the sum, और नंबर कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 1 and 2, इनिशियल एंड फाइनल, 2 ऑब्जर्वेशंस आर देयर तो डिवाइडेड बाय 2। और एवरेज वेलोसिटी में न्यूमेरिकल्स अगर इनके आते हैं, कई बार इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी उस केस में गिवन नहीं होती है, तो विच फॉर्मूला यू विल यूज, मे बी उस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, तो यू कैन यूज ईदर ऑफ दीज टू फॉर्मूला to calculate average velocity. So average velocity के आपके two formula हैं, u plus v divided by 2 and displacement upon time. Based on the data given in the numericals in the question, you will apply the formula. You will use the formula. Okay. The next is acceleration. What do you mean by acceleration? Acceleration, whenever there is a change in velocity, जब भी वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। ओके, सो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट मींस डिवाइडेड बाय टाइम, और अगर आपको चेंज निकालना है वेलोसिटी में तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ओके, तो इसका फॉर्मूला जो है एक्सेलरेशन का, इट इज v माइनस यू अपॉन टी, एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Okay, now the next are graphs, velocity, time and speed, distance time graphs. Okay, see, s is distance, t is time. So this is a distance time graph, or it is a straight linear graph. What does this showing, what does this depict, क्या show कर रहा है ये, कि an object is moving in a uniform motion. देखो ये ग्राफ अगर आप देखें यहाँ से, तो इस केस में डिस्टेंस इतना है, टाइम यहाँ है। एज यू आर गोइंग अप, एज यू आर गोइंग अप, तो इस केस में डिस्टेंस भी आपका बढ़ रहा है एंड टाइम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ओके, सो एज द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, टाइम इंक्रीजिंग, यानी कि विद इंक्रीज इन टाइम डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। सो इट इज यूनिफॉर्म मोशन, मीन ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, the next one is non-uniform motion. Distance time graph है और non-uniform motion है, means object is covering equal distance in unequal intervals of time. So it is a curved path. Okay, and see the third one. It is a straight line parallel to the time axis. This is a straight line and it is parallel to the time axis. So what does this depict? देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पॉइंट पे आके ये फिक्स हो गया। नाउ फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी कि टाइम जो है इस ग्राफ के साथ बढ़ता जा रहा है। सी टाइम की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है, यहाँ भी इंक्रीज हो गई है, यहाँ भी इंक्रीज हो रही है। सो विद दिस ग्राफ यू कैन सी दैट टाइम इज इंक्रीजिंग इन दिस केस, बट डिस्टेंस की वैल्यू इज फिक्स्ड है, डिस्टेंस तो नहीं बढ़ रहा, मीन्स उसका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कवर ही नहीं कर रहा डिस्टेंस, तो मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, द नेक्स्ट इज VT, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अभी यू हैव सीन कि ST ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ऑब्जेक्ट ग्राफ जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इट इज शोइंग दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यू हैव टू इंटरप्रेट इट। ओके, नाउ यहाँ पे ये देखो वेलोसिटी जो है, दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ आकर वेलोसिटी फिक्स हो गई और टाइम जो है बढ़ता रहा, मींस इक्वल वेलोसिटी के साथ जो है, मतलब सेम वेलोसिटी के साथ एक वैल्यू फिक्स हो गई वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी है तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ जो है वो ऑब्जेक्ट मूव करता जा रहा है विद इंक्रीज इन टाइम। सो कैसा मोशन आ गया आपका? यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि एक ही वेलोसिटी के साथ पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो मींस ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो दिस ग्राफ इज शोइंग यूनिफॉर्म स्पेस, ओके, और यूनिफॉर्म मोशन। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे एस टी ग्राफ जो था वो लीनियर था, बिकॉज इट वॉज एस टी, इक्वल डिस्टेंस मुझे शो करना है, और यहाँ वी टी है, वेलोसिटी टाइम है, तो मुझे वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स करनी है, तो विद दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी नाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, सो दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ। ओके, नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, उसमें वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं और इक्वल अमाउंट में आ रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो इट इज अ लीनियर ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप zigzag को शो कर सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंजेस जो है वो अनइक्वल अमाउंट से आ रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड इफ यू टॉक अबाउट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में वेलोसिटी जो है वो आपकी डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होती है? जब वेलोसिटी डिक्रीज हो, पहले देखो इतनी है, फाइनली कितनी पहुंच गई? जीरो हो गई। यहाँ आप वेलोसिटी देखो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर आप रीड करेंगे तो इट इज जीरो। ओके, सो दिस इज योर रिटार्डेशन। ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन स्लोपिंग डाउनवर्ड, ठीक है। और ये जो वीटी ग्राफ का स्लोप है ये आपको रिटार्डेशन या फिर एक्सेलरेशन बताता है। ओके, three equations of motion. Now these three equation of motions are here and we have derived them. इनको हमने derive भी किया हुआ है and we have done so many numericals based on this data. Okay, based on these equations. So you have to practice for the derivations and you have to practice for the numericals also. Okay, one numerical I have here. I have one numerical. A car attains, what you will do, सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या है, पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, बच्चे जब तक आपको क्वेश्चन रीड नहीं कर पाएंगे आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा कि व्हाट डेटा इज गिवन। सो फर्स्ट बेसिक थिंग इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, वन टाइम में समझ नहीं आ रहा, रीड इट ट्वाइस और थ्राइस, ओके, एंड देन you will write the data whatever is given to you, like a car attains a velocity of 36 km per hour, एक कार की वेलोसिटी कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, यानी वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, एक्सेलरेट हुई है, तो यानी पहले किस पे थी? रेस्ट पे थी, तो योर इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है, तो यू इज जीरो हियर, ओके, एंड बी बाद में कितना आ गया? 36 किलोमीटर पर आवर। नाउ यू हैव टू सी कि वेदर दे आर गिवन इन एसआई यूनिट और नॉट। नाउ इट इज नॉट इन एसआई, किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका ऐसा नहीं है, तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ओके, तो यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो एक्सेलरेट हुआ है 0 से 36 किलोमीटर या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आया है, ये कितने टाइम में आया है? 5 सेकेंड्स में, तो टाइम इज गिवन हियर 5 सेकेंड्स। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल, किसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मींस यू हैव टू कैलकुलेट एस। एस आप कैलकुलेट करेंगे, सेकंड इक्वेशन यूज होगी या फिर थर्ड होगी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में एस तो है ही नहीं, ठीक है। अगर आप सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी, यू गिवन है, टी भी गिवन है, हाफ, ए नहीं गिवन, टी स्क्वायर, यू कैन इजिली पुट द वैल्यू। तो इस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स आर अननोन, ओके, ए भी अननोन हो गया, एस भी अननोन हो गया, तो फर्स्ट आपको ए निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप सेकेंड इक्वेशन यूज करें चाहे थर्ड यूज करें। तो ए कैलकुलेट कैसे होगा? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, v इज गिवन टू यू 10 माइनस
U is 0 divided by 5. 10 minus 0 is 10 divided by 5 is 2 meter per second square. Now you will use the formula S is equal to ut plus half at square. U is 0, T 5 है तो 0 multiply 5 is 0 plus half. A कितना है 2. T square is 5 square. So this 2 will get cancelled with this 2. The 5 का square is 25. 25 plus 0 करेंगे तो this the answer come out to be 25. And you are calculating the distance. Therefore the unit is meter here. Okay. So S is 25 meter. So you will revise the numericals and derivations and study hard. अच्छे ढंग से revision करना. Okay class. Thank you and have a nice day.